everyone, welcome to Top Rankers Academy. This is your Roshan Shetty sir, and in today's video we'll be starting with the word problems, that is your practice set 1.5. So before we start with the word problem, I would request you all कि आप लोग अपना टेक्स्ट बुक आपके साथ रखिए. Till now the sums that we have completed उसमें टेक्स्ट बुक का इतना जरूरत नहीं था because sums छोटे थे, तो it was very easy for me to write it down and you can directly copy. But now the word problem, इसमें ना problems बड़े होंगे, so keep your textbook handy so that if there is something important आपको वही का वे मैं आपको मार्क करवा के दे देता हूँ. Now this word problem, ये जो word problem है ना, स्टूडेंट्स लोग को they really feel it very difficult. इसमें difficult ये होता है कि they are not in a position to फॉर्म द इक्वेशंस. यहाँ पर आपको दो इक्वेशन बनाने होते हैं. होता क्या है, स्टूडेंट लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड दे गेट कंफ्यूज्ड. पूरा पढ़ते हैं फिर उनको लगता है कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ खत्म हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया. बट मैं आपको ना आई गिव यू सर्टन रूल्स. आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा. इफ यू फॉलो दैट रूल्स आप ना इजीली यू कैन सॉल्व एनी वर्ड प्रॉब्लम दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. सो व्हाट आर द रूल्स? सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द रूल्स. सो दीज आर द सर्टन रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. भी रूल क्या बोलता है देखो. इफ यू कम अक्रॉस द वर्ड लाइक इज, वॉज, then you need to write an equal to sign. If you come across the word like more than, greater than, exceeds, then after leaving some space you have to write sign plus. अभी तुम बोले सर after leaving some space मतलब क्या? We'll take up one sum, आपको उसमें समझ में आ जाएगा. If you come across the word like less than, smaller, precedes, then you will write minus and after leaving some space आपको minus करना है. Same है plus जैसा ही. If you come across the sentence like sum of two numbers, it will be x plus y. Difference of two number, it will be x minus y. Twice, thrice, two times, three times, four times, ऐसा आएगा तो it will be multiplication. Few formulas that you need to know in this chapter. First one is dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. Second one is the perimeter of a triangle. Perimeter मतलब sum of all sides. सब side को अगर आप add कर देंगे, you will get the perimeter. Perimeter of a rectangle is 2 into length plus breadth. Sum of measures of all angle of a triangle is 180. 9th standard में हमने सीखा था, important theorem from 9th standard. And the last one is speed is equal to distance upon time. इसका हम लोग दूसरा formula भी बना सकते हैं. If I tell you time बताओ, how will you calculate time? Then time will be equal to distance upon speed. मतलब टाइम ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. वेरी सिंपल. एंड अगर मैं बोलेगा डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एक फॉर्मूला आप याद रखोगे ना, यू कैन फाइंड एनी ऑफ दीज वैल्यूज. सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है विच यू शुड नो. वापिस एक बार रिपीट करते, इज वॉज रहेगा तो इक्वल टू साइन, मोर देन, ग्रेटर देन, आफ्टर लिविंग सम स्पेस यू नीड टू राइट प्लस, लेस देन, स्मॉलर देन, प्रीसीड्स, आफ्टर लिविंग सम स्पेस you need to write minus, sum of two numbers is x plus y, difference of two numbers is x minus y, twice thrice रहेगा तो multiplication, and these are the formulas and properties that you need to know. So I would tell you all कि ये वीडियो को पॉज करो इधर का इधर, write down these points, very important point. ये अगर आप समझ गए ना, you can easily crack any of the word problem that is given to you in the question. Let us take an example and let us see how to apply the rules. Dhoni, my favorite. Dhoni is 10 more than twice the age of Kohli. Find their present ages. इधर है ना, स्टूडेंट लोग जब ये पढ़ते हैं धोनी इज 10 more than twice the age of, इधर ही सोचने लगता है धोनी बड़ा है, कोहली बड़ा है, कौन बड़ा है. ये सब नहीं करने का. ऑलवेज रीड द लास्ट सेंटेंस. सम पढ़ने का पूरा, देन रीड द लास्ट सेंटेंस. क्या बोल रहा है इधर? लेट फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो मेरा एजम्पशन रहेगा लेट धोनीज एज बी एक्स एंड लेट कोहलीज एज बी वाई. एक बार ये assumption हो गया, देन द सम इज वेरी सिंपल. देखो धोनी का एज क्या है? एक्स है. एक्स इज मतलब इक्वल टू साइन 10 मोर देन. वेन एवर यू गेट द वर्ड मोर देन आपको क्या करना है? लीव सम स्पेस प्लस 10. 10 मोर देन ट्वाइस मतलब 2 into what? Twice the age of Kohli. What is age of Kohli? Kohli's age is y. So my equation is x is equal to 2y plus 10. So simple. So आपको क्या करना है? whenever you get a question, आप एक बार रीड करो क्वेश्चन को, बट डोंट ट्राई टू इमेजिन थिंग्स. मतलब वो सोचते मत बैठो अरे क्या हो रहा है क्या, कुछ नहीं. आफ्टर यू रीड द एंटायर क्वेश्चन, लास्ट लाइन में आओ, चेक आउट द लास्ट लाइन. वो क्या बोल रहा है देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उसको एज्यूम करो. सिंस ये लीनियर इक्वेशन है, यू विल ऑलवेज हैव टू एज्यूम टू वेरिएबल्स, एक्स वाई, ए बी सी डी, जो भी. आई विल ऑलवेज यूज एक्स वाई.
तो x and y आप assume करोगे, then read the question again, you will understand it. So this part is very important. इसको go through करो, you need to revise it 2 to 3 times. अच्छे से practice करोगे ना, it will be very simple. ठीक है, with these basics, let us start with the first sum of your practice set 1.5. Okay, so let's start with practice set 1.5, question number 1. So what does the question say? एक बार question को ध्यान से पढ़ते हैं. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. कुछ भी समझा नहीं समझा, बाढ़ में गया, आगे पढ़ो. Find the numbers. तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो they have asked you to find the numbers. The sum of twice the smaller number, thrice the greater number, मतलब there are two numbers, there is a greater number and there is a smaller number, and they are telling us to find the number. तो मैं assume क्या करेगा? I will assume let the greater number be x and the smaller number be y. तो मेरा assumption आ गया, let the greater number be x and smaller number be y. अभी देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है. द फर्स्ट सेंटेंस, टू नंबर्स डिफर बाय 3 मतलब उनका डिफरेंस is 3. Difference मतलब minus. So I will write x minus y is equals to 3. Why x minus y? बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करने पे डिफरेंस 3 आया. This will be my equation number 1. लेकिन ऐसे नहीं लिखना है. फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहां पर लिखना पड़ेगा एज पर द फर्स्ट कंडीशन. My first equation is x minus y is equals to 3. Now let us see the second condition. तो यहां पर मैं लिख देगा as per the second condition. अब ये second condition क्या बोल रहा है? Let us read, आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं. The sum of plus sign. Sum का मतलब होता है plus. Sum of twice the smaller number. Twice मतलब 2 into the smaller number. What is the smaller number? Smaller number is y. तो 2 into y. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number. Thrice मतलब 3 into. Greater number is x, so 3 into x. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is equals to 19. So I got my second equation. But ये equation लिखने का तरीका मैं ऐसे रखूंगा. I will write x first, y बाद में is equals to 19. This is my equation number 2. Now very simple. Equation 1 मेरे पास है, equation 2 मेरे पास है. Now I need to solve this equation by eliminating the coefficient. कैसे करेंगे हम लोग? ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है. तो this is very simple. We will multiply the first equation by 2. तो उससे क्या होगा? y है ना, उड़ जाएगा. I will write multiply equation 1 by 2. So when you multiply the entire equation by 2, you will get 2x minus 2y is equals to 6. This is my equation number 3. So now I will compare equation number 2 and 3. y eliminate करना है हमें. Signs are different. तो हम क्या करेंगे? We will add it. I will write adding equation 2 and 3. When you add equation 2 and 3, you will get 3x plus 2y is equals to 19. 2x minus 2y is equals to 6. When you add, plus 2y minus 2y gets cancelled. This is 5x is equals to 19 plus 6 gives me 25. X is equals to 25 upon 5. Therefore, x is equals to 5. 5 ones are 5 5s are. So I got one number. Now I need to find the value of y. So I will write substituting x equal to 5 in equation number, any equation of your choice. Let us take equation number 1. Equation was x minus y is equals to 3. So 5 minus y is equals to 3. तो y को दूसरे तरफ लेके जाते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, तो 3 will be minus 3 is equals to y. Therefore y is equals to 2. So my two numbers are 5 and 2. So I will write down, therefore the greater number is 5 and the smaller
नंबर इज 2। देखा, वेरी सिंपल सम। ये इक्वेशन बनाना इज इंपॉर्टेंट। एक बार ये आपने बना लिया ना, आगे का सॉल्विंग आपको आ जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इट इन अवर अर्लियर प्रैक्टिस सेट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दिस वाज आवर फर्स्ट सम। एक बार फिर से सम को अच्छे से पढ़ो, वापिस से वीडियो सुनो, सो यू विल अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट सम सक्सेसफुली, लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड सम। तो अगर आप सेकेंड सम देखोगे, वहां पर उन लोग ने दे के रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग। ऐसे एक बॉक्स दिया है, वहां पर वो बोल रहा है आई एम अ रेक्टेंगल एंड देयर आर फ्यू वैल्यूज गिवन। लेंथ का वैल्यूज दे के रखा है, ब्रेथ का वैल्यू दे के रखा है। दे आर टेलिंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड दे आर ऑल्सो टेलिंग यू टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड द एरिया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वेरी सिंपल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हमने बचपन में सीखा था कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट ओनली। आई विल राइट डाउन ऑपोजिट sides of a rectangle are equal. So when we come to know the opposite side of rectangle are equal, let us take the first side. So first side I will write down 2x plus y is equals to 8. Sorry, 2x plus y plus 8 is equals to 4x minus y. ये दोनों लेंथ है, तो लेंथ दोनों इक्वल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब x टर्म्स को एक साथ रखो, सब y टर्म्स को एक साथ रखो एंड कांस्टेंट को अलग रखो। सो 2x, दिस 4x विल कम दिस साइड, इट विल बी माइनस 4x प्लस y, ये माइनस y विल कम ऑन द अदर साइड, विल बिकम प्लस y एंड द कांस्टेंट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, प्लस 8 विल बिकम माइनस 8। सो 2x minus 4x gives me minus 2x plus y gives me 2y is equals to minus 8. Now in order to simplify this equation further, I will write dividing both sides by 2. When you divide the entire equation by 2, you will get minus x plus y is equals to minus 4. So this is my फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पर 2 गेट्स कैंसल, 2 गेट्स कैंसल, 2 4s इज 8, सो माइनस 4। आफ्टर इफ यू हैव प्रैक्टिस, जितना आपको मैंने बोला ना, ये स्टेप आपको स्किप कर सकते हो, जहां पर स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखा करता था मैं। ऑपोजिट साइड ये हमने लेंथ ले लिया है। नाउ लेट अस टेक द ब्रेथ। तो ब्रेथ जब हम लेंगे, इट विल बी 2y, आई विल राइट ऑल्सो 2y will be equal to x plus 4. Then let's keep x here only. y को इधर, y को दूसरे तरफ लेके जाते हैं एंड 4 को ए साइड लाते हैं। तो आंसर विल बी माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अभी मुझे देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर x का कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी x का कुछ नहीं है मतलब 1 है। सो आई कैन डायरेक्टली solve this sum. We can easily eliminate x. Signs अलग अलग है, so we will add the equation. So I will write adding equation 1 and 2. So when you add the equation, you will get minus x plus y is equals to minus 4. X minus 2y is equals to minus 4. So plus x minus x gets cancelled. Minus 2y plus y gives me minus y. minus 4 gives me minus 8. Therefore, minus minus cancel हो जाएगा, y is equals to 8. Now, once I get the value of y, I can easily find out the value for x. How? I will write substituting y equal to 8 in equation number 1. तो equation 1 ले लेते हैं। minus x plus y is equals to minus 4. minus x plus 8 is equals to minus 4 minus x, so ये minus 4 के जगह पर यहाँ पर आएगा minus 8, so minus x is equals to minus 12. minus minus will get cancelled, therefore the value of x is 12. तो मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया। सब में उन्होंने जो पूछा है x एंड y का वैल्यू मुझे आ गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द पेरीमीटर as well as the area of the rectangle. So before we find the perimeter and area, we should first know the value of the length of the rectangle. So let us find the length of rectangle. तो how will you find the length of rectangle? Length का वैल्यू हमें देके रखा था 4x minus y.
So 4, x के जगह पर we will substitute the value of x, that is 12, minus y is 8. तो 4 into 12 gives me 48 minus 8, therefore it is 40. क्या दिया हुआ है, कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है आपको? कुछ नहीं दिया है, तो 40 units. Once I find the length of rectangle, then I will find the breadth of rectangle. Breadth of rectangle will be equal to 2y. So 2 into y का value is 8, so the breadth of rectangle will be 16. अभी उन्होंने हमें क्या बोला है? What are the two things that we need to find? We need to find the perimeter of a rectangle. Perimeter का formula is 2 into length plus breadth. So 2 into, what is the length of rectangle? Length is 40 plus breadth is 16. So it will be 2 into 56. So 2 into 56 gives me 112, and I will write here units. So I'll write down, therefore perimeter of a rectangle is equals to 112 units. Since this is the answer that I need to find, इसको मैं डालूंगा ब्रैकेट में, एक्स वाई को ब्रैकेट में डालेंगे, पेरीमीटर को ब्रैकेट में डालेंगे. ठीक है. नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू फाइंड, द लास्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ इज 40 इंटू ब्रेथ इज 16. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 640. अभी यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आप गलत करोगे तो यू लूज 1 मार्क. इट विल बी स्क्वायर यूनिट्स. कभी भी एरिया रहेगा ना, इट विल बी ऑलवेज स्क्वायर यूनिट. सेंटीमीटर रहेगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर. देन आई विल राइट डाउन, देयरफॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 640 स्क्वायर यूनिट्स, एंड इसको मैं डाल दूंगा ब्रैकेट में. वेरी सिंपल सम. जब आपको फाइनल आंसर आ जाएगा तो लास्ट में आप लिख सकते हो, या तो इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो. एक्स एंड वाई को ब्रैकेट में डाल दो, पेरीमीटर रेक्टेंगल ब्रैकेट में डाल दो. दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, वेरी सिंपल सम एक्चुअली. अभी आप सोचोगे सर लेंथ एंड ब्रेथ हमने क्यों ढूंढा था? ताकि हम लोग ये फॉर्मूला में उसको डाल सके, क्योंकि यार 2 इंटू लेंथ बोला ना, लेंथ हमारे पास है नहीं. वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसके लिए हमने लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढा सो दैट यहां पर यूज हो सके. यहां पर आप ब्रैकेट में एल लिख सकते हो, यहां पर ब्रैकेट में आप बी लिख सकते हो, सो दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डायरेक्टली. आई होप दिस सम इज क्लियर. वेरी सिंपल सम. ठीक है. गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन. अगर आप थोड़ा श्योर नहीं हो, एक बार फिर से देख लो. इट विल बी वेरी इजी. आप जैसे जैसे करते जाओगे इट विल बिकम वेरी सिंपल. स्टिक टू द बेसिक्स. ओके. थैंक यू. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम इमीडिएटली. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम, दैट विल बी द लास्ट सम फॉर टुडे. तो आज के दिन में आपने क्या क्या सीखा? वी हैव अंडरस्टूड द रूल्स and we have gone through 3 sums. Now third sum we will start. Now what is the third sum? Let's read the question properly. So sum number 3. The sum of father's age and twice the age of son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, then the sum is 95. कुछ नहीं समझा? छोड़ो, टेंशन मत लो, आगे पढ़ो. क्या बोल रहा है? Find their present ages. तो अभी मुझे मालूम पड़ा find their present ages. तो मैं क्या करेगा? मैं पहले assumption लिखेगा. Let the present age of father be x. age है ना, तो years. Let the present age of father be x years and the present age of son be y years. Simple. Now as per the first condition. Now let us read the first condition carefully. क्या बोल रहा है? The sum बोले तो plus the sum of father's age is x. Sum of father's age and twice the age of his son. Twice the age. Twice मतलब 2 into son's age is y. So twice the age of his son is matlab is equals to 70. This is my first equation. फिर से एक बार देखो क्या बोल रहा है? The sum of मतलब the addition of father's age is x and twice the age of his son. Twice मतलब 2 multiply by is equals to 70. This is my first equation. I hope it is very clear, very simple. Okay, now let us take the
सेकेंड इक्वेशन, तो एज पर द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? नाउ लेट्स रीड. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज मतलब 2 times. तो इफ वी डबल द एज ऑफ फादर दैट इज 2x, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, एड इट मतलब प्लस टू द एज ऑफ हिज सन, सन्स का एज क्या था? y. तो एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज मतलब उसका टोटल विल बी इक्वल टू 95. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. देखो फिर से एक बार फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर मतलब फादर का एज को डबल किया, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट, बोल रहा उधर एड इट क्लियरली दिया है, तो एड इट टू द एज ऑफ द सन, तो सन का एज इज y, तो हम लोग ने एड किया, सो उसका सम विल बी इक्वल टू 95. आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर. एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं लाइव लेक्चर ही ले रहा हूं, तो इसके लिए मैं पूछा एनी डाउट. आई नो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसमें. फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट. अभी ये 2 सिंपल इक्वेशन आई नीड टू सॉल्व. इसमें वी कैन इजीली एलिमिनेट x और वी कैन इजीली एलिमिनेट y. ठीक है, क्या एलिमिनेट करते हैं? चलो लेट अस एलिमिनेट x. तो आई विल राइट मल्टीप्लाई equation 1 by 2. When I multiply the entire equation 1 by 2, I will get 2x plus 4y is equals to 140. This is my equation number 3. अभी हम लोग क्या कर देंगे? x एलिमिनेट करना है, so दोनों का साइंस आर सेम. We will subtract. I will write subtracting equation 2 from 3. So from 3 लिखा तो 3 हमेशा ऊपर, plus 4y is equals to 140. 2x plus y is equals to 95. Don't forget to change the sign. इसका प्लस माइनस हो जाएगा. प्लस 2x minus 2x gets cancelled. 4y minus y gives me 3y. 140 minus 95 gives me 45. Therefore y will be equal to 45 upon 3. Therefore y will be equal to 15. तो y का वैल्यू मुझे मिल गया 15. नाउ व्हाट आई विल डू? आई विल सब्स्टिट्यूट. सो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर, चलो 1 ले लेते हैं. सो दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70. देयरफॉर x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 70. देयरफॉर x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 70. Therefore x is equals to 70 minus 30. Therefore x is equals to 40. तो मुझे y मिल गया, x मिल गया. x क्या था? x was age of father. y क्या था? y was age of son. तो लास्ट में आप लोग लिखोगे, आई एम नॉट राइटिंग इट, आप लोग लिख लो, therefore the present age of father is 40 years and present age of son is 15 years. और years लिखने भूलना मत, अदरवाइज यू विल अननेसेसरीली आपका है ना आधा मार्क चला जाएगा. कुछ मतलब नहीं बनता इतना मेहनत करके उधर ऐसा फालतू छोटा मिस्टेक में मार्क्स गवाने का. सो दीज आर द 3 सम्स, 3 वर्ड प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास. इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. इन टुमारोज क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट 3 सम्स. लास्ट 3 सम्स करके वी विल एंड अप दिस चैप्टर. थैंक यू गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको सच में अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा. एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इट विल बी वेरी यूजफुल. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.